Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear student. This is your physics teacher Najia Kasmi. Student, as you are seeing here, some measured masses, the approximate values of some measured masses. For example, known universe. The estimated measured mass is 10 to the power 53 kilogram. The mass of our galaxy 2 into 10 to the power 43 kilogram. The mass of sun 2 into 10 to the power 30 kilogram, and so on. Student, you have to learn this measured masses for examination point of view. Sometime in exam you have question like that, write the measured masses of known universe, galaxy, sun and earth. And sometime this measured masses include in MCQs. So student, you have to learn the all measured masses. Similarly student, as you are seeing here, some factors, prefix and their symbol. Factors, prefix and their symbol. Student, here we have some 10 to the powers. Some 10 to the powers. In this column, we have 10 to the power 1 to 18 and the power in plus sign. Here, 10 to the power minus 1 to minus 18. If student 10 to the power 18, this factor is known as exa and the symbol is capital E. If 10 to the power minus 18, this factor is known as atto and the symbol is small a. So we have exa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto and deca. And these are the symbols of these factors. Student, the important question is how to learn these factors. Very easy student. Learn it bottom to top. 10 to the power 1 plus 1 is known as deca. 10 to the power plus 2 is known as hecto. 10 to the power plus 3 known as kilo. 10 to the power plus 6 known as mega. 10 to the power 9 known as giga. 10 to the power 12 known as tera. 10 to the power 15 known as peta. And 10 to the power 18 known as exa. If you learn bottom to top, you can learn easily student. Similarly student, here some 10 to the power in negative sign. This column you should learn top to bottom. 10 to the power minus 1 known as deci. 10 to the power minus 2 known as centi. 10 to the power minus 3 known as milli. Minus 6 known as micro. Minus 9 known as nano. Minus 12 known as pico. Minus 15 known as femto. And then minus 18 known as atto. Student, where you use these factors and prefixes and symbols, definitely this include in MCQs.
For example, 1 nanometer is equals to dash meter. So you have to write 1 into 10 to the power minus 9. नैनो की पावर क्या होती है? -9. तो आपने जस्ट क्या लिखना था? 10 टू द पावर -9. इस तरह करके ब्लैंक्स में आपके पास ये जो फैक्टर्स हैं और उनके प्रीफिक्स और जो है सिंबल्स ये आते हैं. नाउ स्टूडेंट, योर होम टास्क टू लर्न these some measured masses and SI prefixes. Student, come to the exercise problem number 2.2. The mass of an electron is 9.11 into 10 to the power minus 31 kilogram. Convert it in gram, milligram, microgram. स्टूडेंट, आपको यहाँ पे मास किस में गिवन है? किलोग्राम में. और किस में कन्वर्ट करना है आपको? ग्राम में, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में. किलोग्राम इज अ बिगर यूनिट एज कंपेयर टू ग्राम, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम. इट्स मीन यू हैव टू कन्वर्ट बिगर टू स्मॉलर यूनिट. बिगर टू स्मॉलर यूनिट. Kilogram to gram, then milligram, then microgram. You can solve this problem in many ways, but I use here a way that is very easy. Student, यहाँ मैंने आपको एरोस के साइन से बता दिया कि मैं कहाँ से कहाँ जाएंगे हम. किलोग्राम टू ग्राम, देन मिलीग्राम, देन माइक्रोग्राम. ये जो एरो का सिंबल है ये आपको शो कर रहा है कि हम बिगर से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं. नाउ यू मस्ट नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. ठीक है स्टूडेंट. अब आप ये देख रहे हैं कि वहाँ मैंने ब्लैक से लिखा है, ये मैंने 1000 ब्लैक से ही लिखा है 3 0, लेकिन आगे 3 0 मैंने रेड से लिखे. जब आप किलोग्राम से डायरेक्टली मिलीग्राम में जाएंगे तो आपने क्या करना है? 1000 में 3 0 हैं तो मिलीग्राम में 6 0 होंगे. 3 0 और बढ़ा देना इसमें. ठीक है, तो ये मिलीग्राम में चेंज हो जाएगा. और जब आप माइक्रो में जाएंगे, आप यहाँ देख रहे हैं ये ब्लैक के 3 0 तो वही हैं जो यहाँ पे भी थे, फिर रेड 0 जो मिलीग्राम का था. तो माइक्रोग्राम में चेंज करने के लिए 3 0 और चाहिए, तो ये टोटल हो जाएंगे 9 ज़ीरोस. कितने ज़ीरोस होगा स्टूडेंट? 9. तो ये डायरेक्ट वे है. किलोग्राम चेंज इनटू ग्राम आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है. मिलीग्राम आपने जो है 6 जो है आपके पास 2000 जो है 1000 जो है आपके पास कितने टाइम्स आएंगे? 2 टाइम्स. और माइक्रोग्राम में 1000 कितने टाइम आएंगे? 3 टाइम्स आएंगे. जिसे आप इजीली लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में. 1000 कैन रिटर्न एज 10 टू द पावर 3. 10 के ऊपर 3 पावर, क्योंकि 3 0 है. जब 1 के आगे 6 0 हो तो इन साइंटिफिक नोटेशन यू कैन रिटर्न एज 10 टू द पावर 6, क्योंकि यहाँ पे 6 0 है. एंड जब 1 के आगे 9 0 हो यू कैन रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन 10 टू द पावर 9. नो स्टूडेंट, come to change the 9.11 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम into ग्राम. वेरी इजी. ये देखिए -31 तो गिवन है, और क्योंकि ग्राम में जाना है तो ग्राम के लिए क्या है? पावर 10 टू द पावर 3 यानी 1000. और क्या करना है आपने? मल्टीप्लाई करना है. व्हेन यू कन्वर्ट बिगर टू स्मॉलर यूनिट यू हैव टू मल्टीप्लाई. आपको मल्टीप्लाई करना होता है. तो आपने लिख दिया 10 की पावर 3. यहाँ पे हम लॉ यूज़ करेंगे, बेस सेम पावर ऐड. तो बेस हमने एक दफ़ा लिखी 10 और पावर -31 और +3 हमने लिख दिया एक साथ. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -31 में से +3 को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगी पावर 10 टू द पावर -28. सो द 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम चेंज इनटू 9.11 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम. सिमिलरली स्टूडेंट, आप ये देख रहे हैं जब 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31
किलोग्राम को मुझे मिलीग्राम में चेंज करना है तो मैं 10⁻6 ले लूँगी। अब क्या आ गया, 10⁻−31 अपनी जगह मौजूद है और ये 10⁻6 आ गए। फिर बेस सेम पावर ऐड किया हमने तो ये आ गई -25 मिलीग्राम। सिमिलरली स्टूडेंट, जब मुझे नैनो माइक्रो में चेंज करना है, माइक्रोग्राम में, तो 10 की पावर कितनी है, यहाँ पे 9 है। तो हमने क्या करना है, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम ये अपनी जगह पर मौजूद है, और साथ में माइक्रो में चेंज करने के लिए 10⁻⁻9 लेके आ गए हम। फिर हमने क्या करा, बेस सेम पावर ऐड कर दी और सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारे पास आ गया 10⁻22। और जो बेसिक वैल्यू थी वो वैसे ही है, सिर्फ हमने जो बेसिस हैं, बेस हैं 10 की पावर, उनको सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया किस में, आपके पास किलोग्राम से ग्राम में, फिर मिलीग्राम में, और फिर माइक्रोग्राम में। ये डायरेक्ट वे चेंज करने का। आप इस क्वेश्चन को और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, योर होम टास्क इज टू सॉल्व 2.3। हियर आई एम गिविंग यू हिंट। 2.3 में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है, फिर मिलीमीटर में और फिर नैनोमीटर में। मैंने यहाँ माइक्रोमीटर भी लिखा हुआ है इसलिए कि जब हम बिगर से स्मॉलर में जाते हैं तो मीटर क्या सेंटीमीटर है, फिर मिलीमीटर, फिर माइक्रो, फिर नैनो। अभी मैंने आपको जो है फैक्टर ऑफ प्रीफिक्सेस में बताई थी, उसमें आप देखिएगा कि आपके पास सेंटी आ रहा है, फिर मिली आ रहा है, फिर माइक्रो आ रहा है, फिर नैनो आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 million micrometer, and similarly nanometer. In this line I change the ordinary form into scientific notation. 100 can be written as 10 to the power 2, 1000 can be written as 10 to the power 3, similarly 10 to the power 6. Here we have 10 to the power 9. So you can solve easily this question or problem 2.3. This is your home task, you have to solve it. Now student, come to the problem number 2.4. The problem number 2.4 is, the time is given, that is 0.5 into 10 to the power minus 18 second. You have to change it minutes and hour and microsecond. क्वेश्चन में आपको गिवन है ये वैल्यू और सेकंड में गिवन है, आपको इसको मिनट में चेंज करना है और आवर्स में चेंज करना है और माइक्रो सेकंड में चेंज करना है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 एरोज बनाए कि आवर से मिनट में, फिर मिनट से सेकंड में और सेकंड से माइक्रो सेकंड में। बिगर टू स्मॉलर तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर मैंने ये जो एरोज बनाए हैं राइट टू लेफ़्ट, ये जो एरोज बनाए हुए हैं मैंने, तो स्मॉलर टू बिगर आपने जाना है तो आपने डिवाइड करना है, यानी सेकंड से मिनट में जाना है और मिनट से आवर में जाना है तो आप डिवाइड करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, यू मस्ट नो दैट 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो मैंने आर के नीचे 1 लिखा, मिनट्स के नीचे 60 लिख दिया। और एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो अगर डायरेक्टली 1 आवर को अगर सेकंड में चेंज करना हो तो हमें 60 मल्टीप्लाई बाय 60 चाहिए। कितना चाहिए? 60 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट इज 3600 सेकेंड। सिमिलरली 1 सेकेंड इक्वल टू 10 to the power 6 microsecond. Now first we have to change according to question. The value is 0.5 into 10 to the power minus 18 second. We have to change into minutes, second to minute. तो स्मॉलर टू बिगर यूनिट जाना है, हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? वी नो डैट 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो डेफिनेटली हम 60 से डिवाइड करेंगे। जब ये डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 8.33 इंटू 10 to the power 21। डिवाइड करने का मेथड क्या है कि आप 0.5 को पहले 60 से डिवाइड कर दीजिएगा और जो वैल्यू आए फिर उसकी 10 की पावर्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगी। सिमिलरली नाउ यू हैव टू कन्वर्ट
0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 सेकेंड इंटू आर। अब आपने सेकेंड से किस में जाना है, आर में जाना है। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60, 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 60 यूज़ होंगे। तो मैंने अब किससे डिवाइड किया है, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 से। फिर आपने ऐसे ही करना है, 0.5 को और 60 इंटू 60 को पहले सॉल्व करना है, फिर इनकी पावर सॉल्व करनी है, तो आपके पास आ जाएगी -22 आवर्स। सिमिलरली you have to change second into microsecond, second into microsecond। अब आप बिगर से स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 सेकेंड इक्वल्स टू हाउ मैनी माइक्रोसेकेंड, 10 टू द पावर 6 माइक्रोसेकेंड। तो वेरी इजी स्टूडेंट, द गिवन वैल्यू इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। सो द सेकेंड चेंज इनटू माइक्रोसेकेंड। इसे सॉल्व कर लेंगे आप, -18 में से +6 निकालिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, -12 माइक्रोसेकेंड। स्टूडेंट, योर होम टास्क इज लर्न द tables, some measured masses, this table, and some SI prefixes, and practice the problem number 2.2, 2.3, and solve the problem number 2.3. Hope student you can easily solve the problem 2.3. Chapter 2 is completed student. My next lecture will be chapter number 3 inshallah. Till then, Allah Hafiz.